فٹ پاتھ پر نہ کوئی ٹھیلا نہ کوئی ہوٹل۔ کمشنر کراچی نے سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر چائے خانوں اور ہوٹلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ واضح کیا کاؤنٹر، کرسیاں ضبط، گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج ہوں گے۔ ضبط سامان قانونی کارروائی کے بغیر واپس نہیں ہوگا۔ وسطی، شرقی، ملیر، کورنگی اور کماڑی کے ڈپٹی کمشنرز نے کارروائیوں کی رپورٹ پیش کر دی۔ نہ رشوت چلے گی نہ معافی ملے گی، وارننگ کا وقت بھی ہوا ختم۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4301 شہریوں کو ای چالان بھگتنا پڑ گیا۔ سب سے زیادہ 2290 چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کٹے۔ اوور سپیڈنگ پر 845 اور ہیلمٹ نہ پہننے پر 655 چالان ہوئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے خبردار کیا، کیمرے کی آنکھ سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ عام شہری ہو یا کوئی افسر، قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک کی گاڑی کا بھی چالان کٹ گیا۔ پیر محمد شاہ کی 10,000 روپے کے چالان کی تصدیق۔ ریاری انٹرچینج پر سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر ای چالان ہوا۔ آپ کی صحت اور آپ کی جان کے لیے، اور پھر سرکار کا انٹرسٹ یہی ہے کہ اس کا سٹیزن جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہو۔ یہ تو الٹیمیٹلی سب نے خود ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو سسٹم آیا ہے یہ آپ کو پرومپٹ کر رہا ہے، یہ آپ کو خوف دلاتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ رسپانسبلی بہیو کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ حادثات روکنے کے لیے ای چالان سسٹم لایا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا ٹریفک حادثات میں کمی کا دعویٰ۔ واضح کیا، اب ٹریفک اہلکار سے بحث نہیں ہوگی، سیدھا چالان کٹے گا۔ غلط چالان پر درخواست دیں، فوری ختم کر دیا جائے گا۔ طلباء کے ساتھ سوال جواب سیشن میں ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حکومت آپ سے چالان کے پیسے نہیں چاہتی۔ حکومت کا مقصد چالان کرنا نہیں ہے، حکومت کا مقصد آپ سے پیسے لینا نہیں ہے۔ حکومت کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں تاکہ 1 روپیہ بھی چالان نہ ملے۔ سینیٹر تاج حیدر برج آج سے پبلک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ پہلے 10 دن اس کو 1 وے چلایا جائے گا، اور 10 دن کے بعد جو ہے یہ برج 2 وے چلے گی۔ 500 ای وی بسز جو ہیں اس کا بھی پروجیکٹ ہے جس کو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ تو حکومت سندھ اپنے شہریوں کو بہتر سے بہترین سفری سہولیات کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ قانون پر عمل کریں، چالان سے بچیں۔ سینئر وزیر شجرنا میمن کا کراچی والوں کو مشورہ۔ تاج حیدر پل کھولنے کی خوشخبری سنائی۔ واضح کیا، پہلے 10 دن پل کو 1 وے چلایا جائے گا۔ ای وی بسیں چلانے کا پھر عزم دہرایا۔ کراچی کے مسائل حل کرنا ترجیح قرار دیا۔ 5000 کا چالان بھرنے سے بہتر ہے ہیلمٹ پہنے اور محفوظ رہیں۔ ای چالان پر شہریوں کو مزید آگاہی دیں گے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا وعدہ، کہا سگنل توڑنے سے حادثات ہوتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایک روز میں 3000 چالان ہونا درست اقدام قرار دیا۔ شہر میں نقل و حمل کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں، سڑکوں کی بہتری تک ای چالان سسٹم معطل کیا جائے۔ ای چالان کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان میدان میں آ گئی۔ رکن سندھ اسمبلی عادل عسکری نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ ایم کیو ایم کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بھی مطالبہ۔ کورنگی میں پلک جھپکتے موٹر سائیکل غائب۔ شہری اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے گیا، واپس آیا تو دیکھا موٹر سائیکل غائب تھی۔ 2 مسلح ملزمان چند منٹوں میں موٹر سائیکل لے اڑے۔ شہری احسن کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ موٹر سائیکل لفٹرز کا تلاش شروع۔ پولیس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا۔ پیک آورز میں شہر کے درجنوں مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ آئی چندرگر روڈ، چارہ فیصل، صدر پر ٹریفک کا شدید دباؤ۔ امیجنا روڈ، گارڈن ایریا، کورنگی روڈ پر بھی گاڑیوں کا رش۔ 3 ہٹی، لیاقت آباد، ناظم آباد، لسپیرا پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ ناگن چورنگی، یو پی موڑ، پاور ہاؤس 4 کے چورنگی، دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، کورنگی سے قیوم آباد سفر کرنے والوں کو سہولت میسر۔ یلو لائن بی آر ٹی کا نیا سنگ میل تاج حیدر پل مکمل۔ 1.5 کلومیٹر لمبا تاج حیدر پل ٹریفک سسٹم میں آسانی لائے گا۔ 3.5 فٹ چوڑا خصوصی بائک ٹریک بھی تیار کیا گیا۔ روزانہ ہزاروں شہری مستفید ہو سکیں گے۔
दिन हो या रात 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए तैयार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश। दुआया तकरीब में मुशीर वज़ीर आला सिंध ज्ञान चंद इसरानी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, डीजी रेस्क्यू 1122 आला अफसरान और शोहदा के अहल खाना शरीक हुए। शोहदा के एसाले सवाब के लिए दुआ। अहल खाना को तोहफ़े पेश किए। रेस्क्यू एहलकारों का खिदमत जोश व जज्बे के साथ जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मुदस्सिर आराइन से इजहार लाताल्लुकी, खुद को पेडल फेडरेशन का नुमाइंदा जाहिर करने पर नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाब जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। बच्चे इलाज से महरूम, सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद 1 माह से बंद। 400 मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहों के हुसूल के लिए डट गए। एमरजेंसी, ICU और दीगर शोबे मुकम्मल बंद। जल्द मुलाजमीन को तनख्वाह मिल जाएगी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का दावा। सीनियर MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मंगोपी टाउन आमद। बरोही बिरादरी और रिंद बिरादरी के अकाबरीन से मुलाकात। फारूक सत्तार को रिवायती पगड़ी पेश। मुलाकात में इलाके के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। फारूक सत्तार की इलाकाई मसाइल हल करने की यकीन दहानी। दोनों बिरादरियों को 8 नवंबर को सुरजानी टाउन में अवामी इज्तिमा की दावत। बेनाई से महरूम अरल हुसैन का आज़म रोशनी से ज्यादा रोशन। CS पास करके फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। वज़ीर आला भी मदाह निकले। मुलाकात के लिए बुलाया, गले भी लगाया। मुराद अली शाह खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दाम करने का वादा। बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए अमली इक़दाम। बल्दिया उज़्मा की इमारत में बनाए गए टैंक का तामीराती काम मुकम्मल। टैंक में 65,000 गैलन पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। मर्ज गार्डन और सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी टैंक बनाया गया। EV चार्जिंग की सहूलत के लिए अहम पेशरफ्त। लकी पेट्रोलियम और मलिक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों कंपनियों का मुश्तरका काम करने का अज़्म। मलिक खुदा बख्श ने कहा, आवाम को बेहतरीन सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। चीफ सेक्रेटरी भी मुतहरिक। मुख्तलिफ अस्पतालों में छापा। सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड ना होने पर बरहमी का इजहार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अद्वियात और बेड्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीजों से मिले और सहूलियात का जायजा लिया। डेंगू के खिलाफ सिंध भर में हंगामी प्लान नाफिज। महकमा सेहत और बल्दियात मुतहरिक। मच्छर मार स्प्रे का आगाज। मेयर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, UC चेयरमैन को मुरास्ते जारी। डेंगू से बिगड़ती सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने इजलास बुला लिया। डेंगू के हॉट स्पॉट्स की निशानदही और फौरी खात्मे की हिदायत। जिले इंतजामिया कब्ल-ओ-आबाद की तस्वीर के साथ रिपोर्ट जमा कराए। स्प्रे प्लान आवाम से शेयर किया जाए। मौसर कंप्लेन मैकेनिज्म सेल कायम करने की भी हिदायत। सिंध हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम प्रिंटिंग प्रेस म्यूजियम में 200 साल पुरानी मशीनें भी महफूज। वज़ीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने खुशखबरी सुनाई। प्रिंटिंग प्रेस आवाम के लिए है। खबरदार किया कि पानी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। साइट एरिया में 5 अरब रुपए से 27 सड़कें बनाई जा रही हैं। जुडिशल अलाउंस बहाल करो। अदालती मुलाजमीन डट गए। इंसदाद मुनशियात और एहतसाब अदालतों के मुलाजमीन का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्लिफ्टन में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतालिबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अदालतों में जुज़वी काम बंद होने से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में कब्जे की कोशिश। ताजरों के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी की मुदाखलत काम कर गई। ब्लॉक G की पार्किंग में कैबिन नस्ब करने की कोशिश नाकाम। ताजर रहनुमा अख्तर का पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया। खदशात का भी इजहार किया। SSDC में करोड़ों रुपए के माली करप्शन का इंकिशाफ। डेरा बुक्टी में 60 किलोमीटर पाइप गायब।
ठेकेदार ने पाक गायब होने के बावजूद बिल भेज दिया। इंक्वायरी में 4 अफसरान कसूरवार पाए गए, बड़े बच गए। कंपनी ने ग्रेड 5 के मुलाजिम को बर्खास्त करके कार्रवाई निपटा दी। बेटी से मुनशियात फरोख्त कराने पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट का वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने 14 साल लड़की की जमानत मंजूर कर ली। 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर लड़की को फुप्पो के हवाले करने का हुक्म। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, वालिदैन बच्चों की तरबियत और हिफाजत के जिम्मेदार हैं। रहमानाबाद गोट को रेगुलराइज करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी कच्ची आबादी से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन का किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वाज़ेह किया, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। तमाम महकमों को अखराजात में कमी करना होगी। अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली अख्तर हुसैन बुगटी का तबादला। अख्तर हुसैन बुगटी चीफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग तैनात। निसार अहमद मेमन सेक्रेटरी बराए बहाली मुकर्रर। मुख्तियार अली अबड़ो का तबादला। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध के अहदे पर फायज। शाहनवाज सोमनो से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आका अल्ताफ हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी स्कूल तालीम के फराइज अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग बख्श अली महर का तबादला। बख्श अली महर को डायरेक्टर जनरल मली तरक्याती अथॉरिटी का ओहदा मिल गया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम सैयद इमदाद अली शाह का ट्रांसफर। सैयद इमदाद अली शाह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। चेयरमैन FPCCI पाक चीन बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा ने खुशखबरी सुनाई कि माइनिंग, इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबों में मुआहदे हो चुके। हुकूमत से तवील मुद्दती सरमायाकारी पॉलिसी देने पर जोर दिया। काश्तकारों को बड़ी सहूलत मिल गई। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी से काश्तकारों के टैक्स में कमी होगी। ज़राई टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई। रेलवे अफसरान और अमला नए टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेनें वक्त पर चलाने में नाकाम। महकमा रेलवे ने अपना ही जारी करदा सर्दियों का नया टाइम टेबल मंसूख कर दिया। पिछला टाइम टेबल अप्रैल से अक्टूबर को बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सोना कभी सस्ता कभी महंगा, कुछ भी हो खरीदना ख्वाब ही रह गया। फी तोला सोना 3500 रुपए महंगा, कीमत 4,19,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए इजाफे से 3,59,963 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल छा गए। कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1635 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,58,465 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। डॉलर 280 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। शोबा तवानाई का तारीख साज दिन। अमरीकी खाम तेल लिए पहला बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। सनरजैको ने पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल बरामद किया। जहाज के लंगर अंदाज होने के बाद तेल का इखराज किया जाएगा। पाकिस्तान में सकाफत और सियाहत के फरोग का आज़म। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ मज़ीद मुस्तहकम होने लगे। आज़रबाईजान रोड शो इन पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब आज़रबाईजान के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए।